Welcome students. Today we are going to continue with the chapter number 7, permutation and combination. And till now we have understood all the concepts, fundamental principle of counting, factorial notation, permutation, combination, everything. Today we are going to start with the miscellaneous exercise. I don't know spelling is right or wrong. Correct. But let me say it's a right miscellaneous. Let me say example. We'll do exercise later on. पहले हम example के बारे में बात करते हैं. And let's start with example number 20. So what does this example says? How many words with or without meaning, each of 3 vowels and 2 consonants. Consonants का मतलब vowels को छोड़ के बाकी के जो होते हैं वो B, C, D, F, G वगैरह can be formed from the letter of the word involute. कौन सा वर्ड है हमारे पास? Involute. Correct. So first of all, observe this particular word. How many vowels and consonants are there? 1, 2, 3 and 4 vowels are there. N, V, L, T are 4 consonants. तो सबसे पहले एक काम करते हैं. Before we try to understand whether this is a permutation problem or combination problem, first let's write down in the word involute there are 4 vowels. Namely का मतलब कौन से है? I, O, E and U and 4 consonants. That means there are total 4 letters, correct? And consonants are N, V, L, T. These are the 4 consonants. So I, O, U, E are the vowels and N, V, L, T are the consonants. Now what does question says? With or without meaning, correct? हम कितने word बना सकते हैं? तो if we recall something like this, that means we are going for the permutation, है ना? Because it means arrangement of the words, letters, correct? तभी word बनेंगे ना, with or without meaning. Suppose मेरे पास कोई छोटा सा word था, हमने देखा rose. तो in how many ways we can write those letter of rose so that we can get a word with or without meaning? So that was a pure problem of permutation. But can we say this is a problem of permutation directly? I don't think so, because if you look at the number of letters we have 8 letters in which 4 vowels and 4 consonants. And we are looking to create a word with or without meaning in such a way that it will consist of 3 vowel and 2 consonants. Correct. So first we have to solve the combination. Correct. How many 5 letter words will be there? And then we'll go for the permutation. Are you getting my idea? है ना? बहुत सिंपल सा काम है. ये हमें मिल गया. Correct. Now the number of ways of selecting 3 vowels out of how many vowels we have? 4 vowels. Out of 4 vowels is 4C3 ways. And the number of ways of selecting 2 consonants out of कितने में से? Again we have 4 consonants is 4C2 ways. Thus by multiplication principle, प्रिंस नहीं लिखना है भाई, प्रिंसिपल यहाँ पे AL नहीं आता है. So by multiplication principle, the number of ways of generating 5 letter words are 4C3 into 4C2. Correct. And you can easily calculate this. 4C3 will be 4 only.
4c2 4 factorial upon 2 factorial into 2, so it becomes 4 into 4 into 3 divided by 2 into 1, so this will get cancelled. 2 4 3 12, 12 2 24 ways. करेक्ट, यानी कि हमें सिर्फ 5 लेटर के जो वर्ड मिलेंगे ना उनके 24 कॉम्बिनेशंस मिले, and each combination can be arranged in a 5 factorial of ways. Now why I said 5 factorial, let's pay attention to that also. कि हमने 5 factorial ही क्यों बोला? Because you are generating a word which consists of 5 letters, correct? Each combination is of 5 letter word, correct? हर एक combination, तो उन हर एक combination में से हमें परम्यूटेशन में कन्वर्ट करना है. वाई परम्यूटेशन में? बिकॉज वी आर लुकिंग टू रीअरेंज द वर्ड्स. हमें वर्ड अरेंज करने हैं ना, लेटर्स को आगे पीछे अरेंज करेंगे तो वर्ड्स मिलेंगे. तो टोटल 24 कॉम्बिनेशन मिले जिनमें 3 वोवेल होंगे और 2 कॉन्सोनेंट होंगे, आउट ऑफ टोटल 8 वर्ड्स, 8 लेटर्स, सॉरी, करेक्ट. एंड आउट ऑफ दोज 8 लेटर्स जब हमने 3 और 2 5 लेटर्स से जो कॉम्बिनेशन जनरेट किए वो है 24. देन ईच कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन जो है वो ईच 24 कॉम्बिनेशन हैज 5 लेटर्स एंड कैन बी अरेंज्ड इन 5 factorial ways. If you want you can write 5p5 as well. क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोज एक कॉम्बिनेशन आपके वर्ड इन्वॉल्यूट में से 3 वोवेल से लेके हमने बनाया O E U 3 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट में लेट से N और T, तो ये बना 5 लेटर का एक वर्ड. अब ऐसे मुझे टोटल कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? 24 कॉम्बिनेशंस विल बी देयर, और हर एक कॉम्बिनेशन में हमें अरेंज करना है बिकॉज इनमें से हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, करेक्ट. सो इसी में से कितने वर्ड बनेंगे, तो कि भाई 5 में से 5 सिलेक्ट करना है एट अ टाइम, सो दैट इज 5p5 एंड दैट इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल एक कॉम्बिनेशन. ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन है? 24 कॉम्बिनेशन है और उन्हें हम अरेंज कर सकते हैं इन 5 फैक्टोरियल वेज. देयरफॉर रिक्वायर्ड परम्यूटेशन इज 24 into 5 factorial. 24 5 factorial कितना होता है? 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, and you can calculate this. I trust you people. ऐसे तो एग्जाम्पल ही आप टेक्स्ट बुक में देख के लिख सकते हो, बट लेट मी स्टिल कीप इट फॉर यू, है ना. आप लोग आराम से कैलकुलेट कर लेना. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हेन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कम्स टुगेदर. आपको अगर याद हो तो जब मैंने परम्यूटेशन समझाया था तो मैंने कहा था कि पहले रोज लेटर हमने वर्ड लिया था, रोज में से 4 एट अ टाइम सिलेक्ट कर लिए. फिर बोला कि रोज में से 4 लेटर है तो 4 में से 3 सिलेक्ट करेंगे एट अ टाइम, है ना. 3 सिलेक्ट करेंगे मतलब क्या करना होता है कि हमें 3 के पहले कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं. अब वो अलग बात थी कि वहां पे 4C3 करते तो 4 ही आता, तो हमें वो बैलेंस हो जा रहा था वहां पे, करेक्ट. So this is how we are supposed to do when we have a big number of letters available और उसमें से छोटे नंबर ऑफ लेटर्स से वर्ड्स बनाने हैं, तो ध्यान रखो कि हमें कॉम्बिनेशन एंड देन परम्यूटेशन करना पड़ेगा. इफ यू रिमेम्बर द प्रॉब्लम मैंने उसमें रिकॉल करवाया था, करेक्ट. सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग टू डू समथिंग लाइक दिस. सो जरूरी नहीं है द प्रॉब्लम विल बी ओनली बेस्ड ऑन परम्यूटेशन और ओनली बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन. इट कुड बी समथिंग लाइक दिस एज वेल. Permutation and combination combined problem can also be asked in exam. Am I clear? You can pause the video and note it down. Now let's go for example number 21. What does it says? A group consists of 4 girls and 7 boys. So हमारे पास 4 girls है और 7 boys है. In how many ways can a team of 5 members be selected? So टोटल मेंबर्स कितने? 7 + 4 11, एंड आउट ऑफ दोज 11 हमें कितने मेंबर की टीम बनानी है? ओनली 5 मेंबर की टीम, करेक्ट. एंड इट सेज दैट इट हैज फर्स्ट वन नो गर्ल, मतलब कि मुझे ऐसी एक टीम बनानी है कि जिसमें गर्ल एक भी ना हो. सेकेंड वन सेज दैट एटलीस्ट वन बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब कम से कम एक बॉय और एक गर्ल तो
चाहिए ही चाहिए. एंड थर्ड वन सेज दैट एटलीस्ट 3 बॉयज, सॉरी एटलीस्ट 3 गर्ल्स, और एटलीस्ट में टी में डंडी आती है, एल में नहीं आती. एटलीस्ट 3 गर्ल्स. करेक्ट. नाउ हाउ आर वी सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, जिसमें ऐसा कहा है कि एक ग्रुप है जिसके अंदर 4 गर्ल्स है और 7 बॉयज है. करेक्ट. इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड. मुझे कितने मेंबर्स की टीम बनानी है? ओनली 5. एंड इस तरह से बनानी है कि पहले केस में बोला है नो गर्ल, दूसरे केस में बोला है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा होंगे चलेगा. और थर्ड केस में बोला है एटलीस्ट 3 गर्ल्स. पहले बात करते हैं पहले वाले केस की, जिसमें बोला है नो गर्ल. करेक्ट. तो नो गर्ल का मतलब क्या होगा कि हम जो भी 5 मेंबर की टीम बनाएंगे, आउट ऑफ दिस 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, देयर शुड नॉट बी एनी गर्ल. करेक्ट. तो क्या कहेंगे? सिंस द टीम विल बी, या तो विल नॉट इंक्लूड एनी गर्ल, टीम विल नॉट इंक्लूड एनी गर्ल. करेक्ट. अगर मैं गर्ल में से कोई सिलेक्ट नहीं करूंगा तो मेरे 5 प्लेयर या 5 ग्रुप के मेंबर्स कहां से आएंगे? टीम के मेंबर्स फ्रॉम द बॉयज. करेक्ट. कॉमा ओनली बॉयज आर टू बी सिलेक्टेड. अब कितने बॉयज सिलेक्ट करने हैं? 5 बॉयज आउट ऑफ 7 बॉयज इन 7C5 वेज. सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि भाई 7C5 क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 2. सो 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल divided by 5 into 2 into 1 factorial got cancelled. 3 7 3s are 21 ways. ऐसे 21 ways होंगी, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो 21. करेक्ट, बिकॉज ऑलरेडी हमने बोल दिया. सो 21 टीम्स कुछ इस तरह से बना सकते हैं जिसमें सिर्फ 5 बॉयज होंगे. करेक्ट. चलो नाउ लेट्स गो फॉर सेकेंड. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. क्या कहा? एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल. मतलब कि मुझे 5 जन की टीम कुछ इस तरह से बनानी है कि जिनमें कम से कम एक बॉय और एक गर्ल तो होना ही चाहिए. तो यहां पे ध्यान से रखना कि टीम कैन बी कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास केसेस आएंगे. लेट मी से फर्स्ट वन, क्योंकि मुझे ये बोला है कि एक बॉय और एक गर्ल चाहिए, तो लेट मी से मैंने कहा कि एक गर्ल है. अब अगर एक गर्ल है, करेक्ट, तो बाकी के मेंबर्स कहां से आएंगे? बॉयज में से. तो 5 चाहिए, 5 में से एक गर्ल आ गई तो 4 बॉयज. सेकेंड केस में क्या होगा? तो कि भाई चलो मान लो 2 गर्ल है या 2 गर्ल्स है, तो बाकी के 3 मेंबर कहां से आएंगे? बॉयज में से. कॉमा 3 बॉयज, है ना. आप कॉमा लिखो, एंड लिखो, जो भी आपको पसंद है. पसंद क्या, एंड ही लिखना पड़ेगा. सिंपल. फिर थर्ड केस क्या पॉसिबल हो सकता है कि भाई चलो 3 गर्ल आ गई तो कितने बॉयज आएंगे? 2, क्योंकि 5 ही का कॉम्बिनेशन रखने हैं, उससे तो बढ़ाने हैं ही नहीं. चौथा केस क्या आएगा कि भाई 4 गर्ल्स आ गई. डू वी हैव 4 गर्ल्स? यस डेफिनेटली. और एक बॉय आएगा. अब अगर आगे जाएंगे तो ना तो 5 गर्ल है, ना ही हम ऑल द गर्ल्स सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि एक बॉय तो चाहिए ही, क्योंकि कहा क्या है? एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल. अब इन सारों के जो भी कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो कैसे लिखेंगे? तो कि 1 गर्ल and 4 boys can be selected in, कितने वे में होंगे? तो गर्ल कितनी है? 4. सो 4C1 into 7C4. सिमिलरली 2 गर्ल and 3 boy can be selected in 4C2 into 7C3. आर यू गेटिंग द आइडिया क्या हो रहा है यहाँ पे? करेक्ट. मैं थर्ड वाला केस एक बाकी रहने देता हूं ऊपर, और बाकी सब यहां से रफ कर देते हैं हम. करेक्ट. चलो अब इसके बाद कौन सा तीसरा केस है? 3 गर्ल और 3 गर्ल एंड 2 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? तो कि गर्ल 4 है, सो 4C3, और बॉयज 7 है तो 7C2. यहाँ पे 7C3 था. करेक्ट. Then 4 girl and 1 boy
कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने वे में होगा, तो क्या 4C4 इंटू 7C1। अब देखो ये केस में भी 5 प्लेयर हो रहे, कंडीशन सेटिस्फाइड, ये में इसमें भी 5 प्लेयर हो रहे, इसमें भी 5, इसमें भी 5। इसका मतलब कि मेरे जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस होगा, करेक्ट, माय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, विल बी एडिशन ऑफ 4C1 इंटू 7C4 प्लस 4C2 इंटू 7C3 प्लस 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू 7C1। अब प्रोडक्ट सब करने हमें आता होगा, है ना। मैं ये थोड़ा भी रफ कर देता हूँ, मुझे जगह चाहिए सिंप्लीफाई करने के लिए। तो कैसे करेंगे, तो 4C1 इज 4, NC1N होता है ना, करेक्ट। 7C4 कितना होगा, तो 7/4 फैक्टोरियल इंटू 3। 4C2 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2। 7C3 यानी कि 7/4 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस 4C3 4 होगा, 7C2 7/5 इंटू 2 प्लस 4C4 1 और 7C1 7। क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से करेंगे, 4 इंटू 7 6 5 डिवाइडेड बाई 3 2 1। 4 4 फैक्टोरियली कट हो गया, कट हो सकता है तो काट ही देंगे ना, क्यों नहीं करते। 7 इंटू 6 5 4, 3 फैक्टोरियल कट, ये 2 इंटू 1 और दूसरा वाला 2 इंटू 1 प्लस 4 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 7। जितना हो सके उतना पॉसिबल कट कर लो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, करेक्ट। अभी भी देखो हमें जगह चाहिए कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए, करेक्ट। सो कैसे करेंगे, सो 7 5 जा 35, 35 2 जा 70 और 140 प्लस 7 5 जा 35, 140 140 और 70 200 एंड नो 7 5 जा 35, 35 2 जा 70 और 70 3 जा या 210, सही था। प्लस 7 6 जा 42, 42 इंटू 2, 42 इंटू 2 कितना होता है 84 प्लस 7 ऐड कर लो, 7 प्लस 4 11, 1 आएगा, 8 9 10, 10 प्लस 4 14, 1 आएगा, 1 2 3 4, 441 वे में हमें क्या मिलेगा, कम से कम एक बॉय और एक गर्ल वाले कॉम्बिनेशंस। जिन ऐसी टीम बनेगी कि जिसमें एक बॉय और एक गर्ल तो होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा बॉयज और उससे ज्यादा गर्ल्स होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये टोटल कॉम्बिनेशन मिला। अब एक सिंपल सा लॉजिक ध्यान में रखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अच्छा, ये एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कि कम से कम 3 गर्ल होगी, यानी कि 3 से ज्यादा गर्ल चलेगी। तो ये वाले कॉम्बिनेशन में देखो 3 गर्ल है तो बाकी 2 बॉयज आएंगे, ये वाले कॉम्बिनेशन में 4 गर्ल है बाकी बॉय आएंगे। तो यही दोनों कॉम्बिनेशन को आप ऐड कर दो, दैट विल बी द आंसर फॉर द एटलीस्ट 3 गर्ल्स। आर यू गेटिंग मी? एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या होता है, वी नीड मिनिमम 3 गर्ल्स इन अ टीम। मिनिमम, उससे ज्यादा गर्ल्स होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक टीम में हमने 4 गर्ल्स ली, 4 में से 3 गर्ल्स ली क्योंकि 3 बोला है, अलाउड है, करेक्ट। तो बाकी के 2 बॉयज आएंगे, तो यही वाला कॉम्बिनेशन होगा ना। फिर बोला है कि एटलीस्ट है तो 4 गर्ल्स भी आ सकती है, तो 4 गर्ल के हिसाब से ये वाला कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन का सम यानी कि 84 प्लस 7 91, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो ये वाला केस जो है ना वो इसी में आ गया है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट इन अ डिटेल वे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये दोनों केस को सिंपल सा आपको ध्यान में रख के करना है, नथिंग न्यू, नथिंग एक्स्ट्रा, दैट्स इट। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज डन। बस इसके लिए आपको नीचे प्रॉपर्ली लिखना है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स मीन्स अ टीम कैन हैव 3 गर्ल्स और मोर देन 3 गर्ल्स। सो 2 केस जनरेट होंगे, 3 गर्ल्स 2 बॉयज एंड 4 गर्ल्स 1 बॉय, एंड सिंपली डू द कॉम्बिनेशन एंड गेट द प्रॉब्लम डन। Am I clear? You can pause the video and note it down. Now let's go for example number 22. What does this example says? And if you believe me, this particular example is very important. Find the number of words with or without meaning can be made using all the letters of the word
अगेन। तो पहले तो एक काम करते हैं कि अगेन वर्ड के हिसाब से हमें परम्यूटेशंस क्या मिलेंगे वो फाइंड करेंगे। फिर क्या बोला है, इफ दिस वर्ड्स आर रिटर्न एज इन अ डिक्शनरी, अगर ये सारे वर्ड्स डिक्शनरी में लिखे हैं, करेक्ट, भले उसका मीनिंग हो ना हो डजेंट मैटर, व्हाट विल बी द 50th वर्ड, 50वां वर्ड क्या होगा, 50th वर्ड। और यू कैन सिंपली से कि उनमें रैंक 50 पे कौन सा आएगा, है ना। अगर इस वर्ड के हिसाब से आपने डिक्शनरी बनाई तो आपके 50वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा इन दिस पर्टिकुलर लेटर्स, करेक्ट। तो सबसे पहले तो उसने क्या पूछा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, है ना। तो यहां पे हमारे पास 5 लेटर है इन द वर्ड अगेन, जिसमें ए 2 बार आ रहा है, इन विच ए अपीयर्स ट्वाइस, 2 लिखो ट्वाइस लिखो आपकी जो मर्जी है, करेक्ट, लेट्स से 2 टाइम्स। देयरफॉर द रिक्वायर्ड परम्यूटेशन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स आर, कितने वर्ड्स बनेंगे, करेक्ट। तो क्या भाई 5 लेटर है जिसमें ए रिपीट हो रहा है 2 बार, सो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, सो 5 4 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60, कितने लेटर्स बने 60, सॉरी कितने वर्ड्स बने 60 वर्ड्स विल बी जनरेटेड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब 60 वर्ड में से हमें 50 वाली जगह पे कौन सा मिलेगा ना, वो पूछा है इन्होंने, समझो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन जनरेट, टोटल 60 वर्ड्स ना, आउट ऑफ दो 60 वर्ड्स हमें ये बताना है कि 50 पे कौन सा होगा, 50th वर्ड कौन सा होगा। अब ये कैसे करेंगे, ये तो थोड़ा दिक्कत वाला काम है, हमें पता कैसे चलेगा 50 वाले प्लेस पे कौन सा है। तो एक काम करो, सबसे पहले ये सोचो कि ये जितने भी लेटर्स है AGIN, उन्हें अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखोगे तो सबसे पहले कौन आएगा, A, फिर G, फिर I और फिर N। एक सिंपल सा लॉजिक में आपको समझाने की ये ट्राई कर रहा हूं कि जब आप डिक्शनरी खोलते हो तो डिक्शनरी में पहले सारे A वाले वर्ड होते हैं, करेक्ट। और A वाले वर्ड में ऐसा होता है कि सपोज डबल ए वाला होगा तो वो पहले आएगा, फिर AB वाला, फिर AC वाला, फिर AD, AE, AF, AG, ऐसे पूरा AZ तक जाता है, करेक्ट। अब जैसे AZ खत्म होता है उसके बाद वापस अल्फाबेटिकली ऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई AFB, AFC, AGA, AGB, ऐसे ऑर्डर में आता है। ऐसे जितने भी वर्ड बनेंगे उसको इस तरह से हमें ऑर्डर में रखना है, करेक्ट। इसीलिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, डिक्शनरी ऑर्डर, है ना। इफ दिस वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी में लिखा जाता है वैसे लिखोगे तो 50 वाले वर्ड पे कौन मिलेगा या कौन सा वर्ड मिलेगा। तो एकदम सिंपल वे में स्टार्ट करेंगे, फिक्स द लेटर A एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, है ना। तो मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो A, कितनी जगह बाकी बच गई, कितने लेटर है 5 है ना, तो 1 2 3 4 जगह बाकी है, करेक्ट। अब इन 4 जगहों को फिल करने के लिए मेरे पास कौन से लेटर्स है, तो वे GAIN, एक A तो यहाँ पे ऑलरेडी यूटिलाइज हो गया है, करेक्ट। तो कितने लेटर्स है GAIN, मतलब वही हुआ। अब GAIN मतलब कि 4 लेटर एट अ टाइम, टेकिंग 4 ऑल एट अ टाइम, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज 4 फैक्टोरियल, 24। चेक कर सकते हो आप लोग 4 फैक्टोरियल कितना आएगा। तो अगर मैं मेरा वर्ड A से स्टार्ट कर रहा हूं ना तो मुझे 4 फैक्टोरियल ऑफ द वर्ड मिलेंगे। क्यों 4? क्योंकि मेरे पास ये जो 4 जगह खाली है ना उनमें मैं बाकी के रिमेनिंग 4 लेटर्स में से कोई भी कैसे भी अरेंज कर सकता हूं। सो टोटल आई विल गेट द 24। देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, करेक्ट। अल्फाबेटिकल में जाएंगे तो उसके बाद मुझे अरेंज करना पड़ेगा G से, क्योंकि अल्फाबेटिकल में AGIN। अब जैसे ही G लिया, अगेन जगह तो 4 है, लेकिन इन 4 जगह में A 2 बार रिपीट हो रहे हैं। इन 4 जगहों में AAIN ऐसे 4 लेटर है, तो 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इट विल बिकम 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 24 बाय 2 12, है ना। तो मैं 12 है ना यहां से हटा के यही लिख देता हूं 12, करेक्ट।
फिर सपोज मैंने आई से शुरू किया तो वापस 4 जगह, उसमें भी देखो ए 2 बार रिपीट होंगे तो ये भी 12, इनका टोटल करो कितना आता है 12, 24 प्लस 24 48 लीटर्स तो यहाँ पे खत्म हो गए, है ना। यहाँ पे खत्म हो गए का मतलब ए से शुरू होने वाले टोटल लीटर वर्ड्स होंगे 24, जी लीटर से शुरू होने वाले टोटल वर्ड होंगे 12, आई लीटर से शुरू होने वाले टोटल वर्ड होंगे 12। तो इसके बाद हम एन लीटर से स्टार्ट करेंगे, एन करेक्ट, कितनी जगह है 4। अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोलूंगा कि 4 जगह मतलब बाई 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो वो तो 12 हो गया 60 हो ही जाना है, बट हमें 50 वाली पोजीशन पे क्या होगा वो देखना है। तो देखो मैं ध्यान से किस तरह से इन प्लेसेस को फिल करता हूं। नाउ द वर्ड एट 49th प्लेस कैसे लिखेंगे, एन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4 जगह खाली है। अब जब आप डिक्शनरी फॉर्म में जाते हो ना तो आपको हमेशा पहले ऑर्डर में जाना पड़ेगा, ए जी आई, ये हो गया 49th प्लेस पे। सिमिलरली द वर्ड एट 50th प्लेस, 50 वाले प्लेस पे कैसे रखेंगे तो क्या एन वापस और ये 4 जगह खाली। अभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप देखोगे तो ए में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट जी आई की जगह पे आई जी हो जाएगा एंड दिस इज योर 50th वर्ड। अब आप सोचोगे सर 50 वाला था तो आपने तो इस तरह से लिख दिया, हमने मान भी लिया। अगर मान लो 50 की जगह मुझे पूछा होता 53 वाला तो अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन इजंट इट। तो एक काम करो, देखो जैसे हमें 48 मिल गए, है ना, दिस इज एक्स्ट्रा वी आर लुकिंग, 48 हमें मिल गए। अब मानो कि भाई मुझे 53 वाला पूछा है, 53 थोड़ा दूर है तो लेट्स से एन, है ना, समझना। अभी मैं बताऊंगा 53 क्यों नहीं हम डायरेक्टली कर सकते, कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। पहले समझो कि भाई ये ऑर्डर खत्म हो गया, 48 हो गया, अब एन से स्टार्ट होगा। एन से स्टार्ट होंगे मतलब मेरे पास 4 जगह भरने के लिए है। अब उन 4 में से मान लो मैंने यहाँ पे ए रख दिया, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट तो ए से ही होगा ना, एन के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए आएगा। अब बची कितनी जगह, 3 जगह पे मेरे पास 3 वर्ड है रखने के लिए, ए जी आई, और तीनों 3 डिफरेंट है। तो इसे प्लेस करने के लिए मेरे पास कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। अरे बाप रे, ये तो 48 से 54 चला गया, 53 तो रह गया। तो अब हमें 53 को करना क्या पड़ेगा, कुछ इसी में से उल्टा पुल्टा करके अरेंज करना पड़ेगा। इन द सेंस के क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना। अभी भी मैंने यहाँ पे 50 वाला लिखा है, अब 51 क्या करेंगे तो कि 51 में लेट्स से एन ए। अब मान लो ये वाला ए हम यहां से हटा रहे हैं, क्योंकि अब ऑर्डर चेंज होगा ना। पहले जैसे कि आयुष तो ए वाई यू एस एच, फिर किसी का नाम होता है ए वाई यू एस एच, तो पहले डबल ए वाला आएगा फिर सिंगल ए वाला आएगा। तो अब यहां से ये वाला ए भी हम चेंज करेंगे, मतलब कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन तीनों के अंदर परम्यूटेशंस खेल रहे हैं, करेक्ट। तो इन तीनों लेटर्स में से पहले ऑर्डर वाइज ए जी आई लिखा, फिर ए आई जी लिखा, करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब ऑर्डर में ए खत्म हो गया तो जी आएगा, कैसे लिखेंगे, जी ए आई ए, करेक्ट। फिर आई आएगा, नहीं एक मिनट, जी ए आई ये सही है, पहला तो एन ए, इन तीनों में से अब ऑर्डर के हिसाब से क्या आ जाएगा, जी ए आई 51 पे। 52 पे क्या करेंगे तो कि एन ए जी ए आई है डेफिनेटली, तो इसके बाद आएगा एन ए जी आई ए, और 53 वाले पे आएगा एन ए आई ए जी। ये आपका 53 वाला वर्ड होगा, एन ए आई ए जी। 54 पे अब चेक करो तो एन ए मैंने कहा था, है ना, ये रहा 54 यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा, आई जी ए, ये होगा आपका 54 वाला वर्ड। समझ में आ रहा है ना। अब सपोज मान लो 55 वाला पूछा होता तो क्या आपने जब यहाँ पे एन ए रखा, उसके बाद 3 फैक्टोरियल के हिसाब से 654 कर दिए, तो 55 पे क्या आएगा, सोचना तो पड़ेगा ना, ऐसे ही ना थोड़ी हमारा काम बन जाना है, करेक्ट। तो 55 पे चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके बाद कौन से कॉम्बिनेशन में जाएंगे, तो क्या एन के बाद ए वाले खत्म हो गए, है ना, तो वापस क्या हो जाएगा, एन के बाद जी आएगा, करेक्ट। अब जी वाला आया तो ये 3 जगह कैसे भरेगी, ए आई, ये होगा आपका 55th पोजीशन पे,
समझ में आ रहा है? वैसे कुछ भी आ सकता है इन दिस पर्टिकुलर, इंस्टेड ऑफ आस्किंग 50 एनीथिंग कैन बी, लेट्स से 32 और लेट्स से 36 है तो 37, 38 और 39, 40 कुछ भी हो सकता है ना? बस आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है, यानी कि डिक्शनरी को फॉलो करना है। अब जिन्हें पता नहीं है ना कि डिक्शनरी में कैसे आता है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार डिक्शनरी थोड़ी देख लो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर अस। जैसे डिक्शनरी देखोगे ना, आपको एक पैटर्न सी दिखेगी नामों में, करेक्ट, और उस पैटर्न के हिसाब से आपको चलना है। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम इजी भी है और लिटिल बिट इन अ वे ऑफ कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैं क्यों बोल सकता हूँ ऐसा? क्योंकि ए 2 बार यूज हुआ है। अगर सारे वर्ड्स डिस्टिंक्ट होते ना तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाता, बहुत ज्यादा सिंपल, करेक्ट। बट जब हमारे पास ऐसा कुछ होता है ना तो ध्यान रखना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस सपोज मान लो कि भाई इंस्टेड ऑफ अगेन हमारे पास वर्ड है गेन, करेक्ट, GAIN, और इसमें पहले तो ये सोचो कि कितने हमारे वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, तो क्या 4 लेटर है तो 24 वर्ड्स बनेंगे। और मान लो मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ कि भाई 16th रैंक किसका, 16th रैंक किसका, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट करोगे ए, ये 3 प्लेसेस, यहाँ पे सब रीअरेंज करोगे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 वेज। फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाओगे तो ए के बाद आता है जी, वहां पे 3 लेटर अरेंज करोगे 3 फैक्टोरियल 6 वेज। तो ये देखो 12 तो हो गए, मैंने पूछा 16 वाला, करेक्ट। अब एक ध्यान से देखते हैं कि अगर यहाँ पे 12 खत्म हो गए, जी के बाद आएगा आई, करेक्ट, जी के बाद आएगा आई, आई में भी 3 प्लेसेस होंगी भरने के लिए, वो 3 फैक्टोरियल में 18 पे चली जाएगी। बट अब 12 से 16 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, तो कि भाई आई है, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, AGN, ये हो गया आपका 13वें नंबर पे। फिर आई, फिर AN और G, ये हो गया आपके 14th प्लेस पे। अब देखो ए के साथ के बाकी के 2 परम्यूटेशन खत्म हो गए। अगर मैं चाहता तो मैं आपको ये ऐसे लिख के बताता, देखो IA और 2 जगह खाली है तो उसको फिल करने के लिए 2 फैक्टोरियल 2 वेज, तो 12 और 2 14 हो गए, करेक्ट। अब IA चला गया, ए के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, G आएगा। अब उसमें 2 प्लेसेस भरने के लिए होगी, उसके 2 फैक्टोरियल, तो वो 2, ये हो जाएगा 16। बट 16 वाली प्लेस पे एग्जैक्टली होगा क्या, तो कि पहले ये सोचो कि मान लो ये 15 है, 14 पे हमें पता चल गया क्या था, IG, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए के बाद N आएगा और 16 वाले पे IGNA आएगा, ऐसे बनेगा ये आपका 16th रैंक। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हियर इज कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स में देने पड़ेंगे, है ना। ऐसे ही नहीं बोला मैंने ये इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे इसमें इतना सारा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, करेक्ट, वेस्ट इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड। ऐसे ही मैं इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग जस्ट सिंपली एक आध प्रॉब्लम ऐसा देख के हाँ 50 रैंक आ गया चलो, नो, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे रैंक वाले क्वेश्चन आते हैं और ये टाइप के क्वेश्चन MCQ में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट लाइक दिस इन अ इजी वे, क्विकली हमें मिल सकता है। सो MCQ में आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक 3 मार्क 4 मार्क जनरली आपके NCERT या CBSE बोर्ड के हिसाब से दिस क्वेश्चन में बी आस्क इन 6 मार्क्स, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिर थोड़ी थियरी वगैरह अंदर लिखनी पड़ेगी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ टू डू दैट, करेक्ट। सो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो यू कैन रिवाइंड द वीडियो, कीप वॉच इट। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, सो आई होप यू पीपल गॉट दिस। एम आई क्लियर? नाउ लेट्स गो फॉर example number 23. And I literally hope that you people understood the previous example. What do we have in this one? How many numbers greater than 7 digits, 10 lakh, can be formed by using the digits 1 2 0 2 4 2 4? How many number greater than 10 lakh can be formed using these digits? Now how are we supposed to solve this kind of a problem? तो क्या भाई जो दिया हुआ नंबर है उसमें कितने डिजिट है, 7 डिजिट है। नंबर जो हमें जनरेट करना है इनसे इससे बड़ा,
उसके लिए कितने डिजिट्स दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दोनों 7 7 है। सो ये एक चीज क्लियर हो गई दैट वी नीड ऑल द नंबर्स एट अ टाइम। डेफिनेटली फॉर श्योर हमें सारे नंबर्स चाहिए एट अ टाइम। तो क्या बोलेंगे, सिंस दिस 10 lakh is a 7-digit number and the number of digit and the number of digit to be used are also 7, to be used is also 7, करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमें नंबर जो है वो इससे बड़ा लेना है, तो इट इज डेफिनेटली फॉर श्योर कि वो 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इफ माई 7 डिजिट, इफ आई हैव 7 डिजिट, आई मीन इफ इट स्टार्ट्स विद 0, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट दिस ग्रेटर देन 10 lakh नंबर, करेक्ट। यानी कि इट शुड स्टार्ट विद आइदर 1 2 और 4, उनमें से कोई भी नंबर से स्टार्ट होगा चलेगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होना चाहिए नहीं। सो यू कैन डू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन 2 ways। पहला तरीका ये है कि आई हैव 7 डिजिट्स इन विच 2 रिपीट्स थ्राइस एंड 4 रिपीट ट्वाइस। उसके टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या है वो फाइंड करो। क्यों परम्यूटेशन? बिकॉज यहाँ पे 7 डिजिट है और 7 नंबर हमें यूटिलाइज करने ना, तो देयर इज नो कॉम्बिनेशन पॉसिबल एट ऑल। ऐसा तो है नहीं कि 7 में से 3 ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ऑल ऑफ देम आर टू बी सिलेक्टेड, करेक्ट। तो 7 डिजिट्स के परम्यूटेशन निकालो बाय रिपीटेशन वाले से, करेक्ट, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो 2 को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 2 बार हो रहे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, यू विल गेट समथिंग परम्यूटेशन। एंड देन उसमें से 0 को पहली पोजीशन पे फिक्स करके बाकी के 6 डिजिट्स के जो परम्यूटेशन मिलेंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट इज वन मेथड। सेकेंड मेथड, आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि 10 लाख से बड़ा चाहिए, यानी कि हमारा जो भी नंबर स्टार्ट होगा शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1 या फिर 2 और 4। तो कि भाई 1 से स्टार्ट होते हुए के कितने परम्यूटेशन है, 2 से स्टार्ट होने वाले के कितने परम्यूटेशन है, 4 से स्टार्ट होने वाले के कितने परम्यूटेशन है, एड ऑल ऑफ देम, यू विल गेट द सेम आंसर। आपको दोनों में से जो तरीके से करना हो आप लोग आराम से कर सकते हो। लेट्स गो फॉर दी टेक्स्ट बुक वे, है ना। ऐसे टेक्स्ट बुक में दोनों ही बोला है, इन द रिमार्क इट इज गिवन, कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, करेक्ट। सो लेट्स से 1 2 और 4 से हम स्टार्ट करेंगे, तो क्या कहेंगे, नंबर हैव टू बी ग्रेटर देन 10 lakh, करेक्ट। सो they can begin with 1 2 और 4। 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, या फिर 4 से हो सकता है। सो द नंबर बिगिंस विथ, द नंबर इज बिगिनिंग विथ 1। अगर मैं 1 से बिगिन करूं तो मेरे पास कितनी जगह बचेगी, 6। लेकिन उन 6 में 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये हो गया 2, 5 2 10, 10 6 60। अरे गेटिंग। उसी तरह से द नंबर इज बिगिनिंग विथ 2, तो क्या उसमें भी 6, लेकिन अब 2 से स्टार्ट हो रहा है, पे अटेंशन। तो एक 2 तो पहले में फिक्स हो गया है, बाकी 6 में 2 बार ही 2 है, सो 6 मतलब नीचे 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 3 डिवाइडेड बाई 2, अगेन कट, 5 2 10, 6 3 18, 18 10 180, करेक्ट। एंड देन इफ यू स्टार्ट द नंबर इज बिगिनिंग विथ 4, तो 6 फैक्टोरियल। अब देखो 4 भी 2 बार है, उसमें से एक तो पहले पोजीशन में फिक्स हो गया, अब एक ही बार बचा, तो इसका मतलब कि डिवाइड बाय सिंपली 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ही रिपीट हो रहा है, 1 और 0 तो सिंगल टाइम है। तो 6 5 एंड 4, 5 4 20, 26 120। इज इट करेक्ट? यस डेफिनेटली। अब ये तीनों का सम, तो क्या बोलेंगे, हेंस द नंबर
ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी कितने होंगे? तो क्या भाई 60 प्लस 180 प्लस 120 कितना होगा ये? 300 एंड 360। सिंपल। जैसे मैंने कहा, अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ। करेक्ट। तो पहले 7 को लेके करते, तो इट वुड कम आउट एज 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये सिंप्लीफाई करते तो कोई नंबर मिलता। चलो मैं बता देता हूँ क्या नंबर आता। 7654 डिवाइडेड बाई 2। सो अगेन 5 2 10, 7 6 42, 42 एंड 10 420। ये दूसरी वाली मेथड बता रहा हूँ, और मैं इस तरह से करते दूसरे तरीके से। प्लीज कॉपी करते वक्त ध्यान रखना, दिस इज द मेथड, दिस इज अनदर मेथड जो जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है ना। दूसरे में क्या करेंगे तो कि भाई 7 फैक्टोरियल से फाइंड कर लिया। अब पहले में 0 फिक्स कर लेंगे। 0 इज एट द बिगिनिंग। 0 फिक्स हो गया तो कितने बचे? 6। 2 2 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। इसका आंसर ऑलरेडी देखो 60 आया हुआ है। तो सिंपली क्या करो, 420 में से 60 माइनस कर दो, दैट इज गोइंग टू बी 360, और ये भी 360 आया। करेक्ट। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। अरे जल्दी इसीलिए खत्म हो गया, स्टेटमेंट्स नहीं लिखे। आप स्टेटमेंट लिखोगे तो ये प्रॉब्लम भी एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही, क्योंकि 2 स्टेप तो करने ही करने। कौन से? ये स्टेप कॉमन है। यहाँ पे भले ये ना लिखे कि भाई, लेकिन फिर भी नंबर ग्रेटर देन 10,000 तो लाना ही है। 10 लाख सॉरी। और फिर उसमें ऐसा बोलेंगे कि भाई पहले सारे नंबर्स का परम्यूटेशन फाइंड कर लो। करेक्ट। जिसमें 2 3 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है वगैरह लिख के, तो आपको मिलेंगे 420 वेज। फिर आप कहोगे कि भाई नाउ लेट्स बिगिन विद दी नंबर विद 0। तो बाकी की 6 पोजीशन फिल करने के लिए आपके पास 6 डिजिट्स है। तो 6 फैक्टोरियल, जिसमें भी 2 3 बार रिपीट हो रहा है और 4 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, उसका आंसर मिलेगा 60। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर विच इज ग्रेटर देन 10 लाख इज गोइंग टू बी 420 माइनस 60, दैट विल गिव यू 360। तो इस तरह से होता है। ऐसे डायरेक्टली इतने में खत्म नहीं होने वाला हो, है ना। ऐसे करते तो ये भी इतना सिंपल, यही 3 चीजें लिखते तो हो जाता, isn't it? बट ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा प्रॉपर डिटेल में स्टेप वाइज लिखना, अदरवाइज किसी स्कूल में डिफिकल्टी हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग दैट इज ओके, वो आप समझ गए, आप लोगों को समझ में आ रहा है या समझ रहे हो, दैट इज वेरी गुड। बट ऑलवेज लुकिंग एट द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो, ध्यान रखना कि इस तरह से लिखना होता है। दिस इज हाउ यू शुड बी राइटिंग दी प्रॉब्लम, है ना। सीधे सीधा अच्छा 10 7 है, ये 7 है, चलो पहला नंबर से स्टार्ट किया, ये पहले दूसरे, अरे ऐसा नहीं। यहाँ पे भी एक्चुअली लिखना चाहिए कि इन विच 2 3 टाइम्स है और 4 2 टाइम्स है। यहाँ पे 2 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 3 टाइम्स 4 रिपीट नहीं हो रहा है, चलिए, है ना। सो दैट इज हाउ वी आर सपोज टू डू। करेक्ट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now let's have a look at example number 24, and this is going to be the last example of your miscellaneous examples. In how many ways 5 girls and 3 boys can be seated in a row such that no two boys sit together? 2 बॉयज साथ में नहीं होने चाहिए। करेक्ट। तो कैसे कर सकते हैं? वैसा तो कैसे अरेंज करेंगे? तो आप में से शायद बहुत सारे ने सोचा होगा कि सर एक काम करो, आप ऐसे बिठाओ, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, तो 3 गर्ल यूज हुई, 3 बॉयज हो गए और बाकी बची 2 गर्ल्स ऐसे। सो दैट्स अ गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। बट अगर मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया होता तो, और अगर मान लो मैंने यहाँ पे नहीं की जगह यहाँ पे 3 बॉयज को एडजस्ट किया होता तो, इसका मतलब ऐसा है कि हम इतनी हड़बड़ी नहीं कर सकते। ध्यान से देखेंगे कैसे करना चाहिए इसको। तो क्या सबसे पहले एक काम करो, 5 गर्ल्स को बिठा दो, है ना। लेट अस फर्स्ट सीट द 5 गर्ल्स, और उनको कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि ऑब्वियसली गर्ल्स तो एक दूसरे में इंटरनली अरेंज कर सकते हैं ना। सो दिस कैन बी डन इन 5p5, यानी कि 5 फैक्टोरियल वेज। क्योंकि 5 गर्ल्स हैं, उनको मैं कैसे भी कहीं पे किस तरह भी बिठाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजू बाजू में आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क कहां पड़ना चाहिए, 2 बॉयज बाजू बाजू में नहीं आने चाहिए।
तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए गर्ल्स में पूरी लिबर्टी है, आप कहीं पे भी किसी को भी बिठा सकते हो. सो ऑल द गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज. करेक्ट. नाउ फॉर ईच अरेंजमेंट, for each such arrangement 3 boys should be arranged और 3 boys can be selected. 3 boys को हमें सिलेक्ट करना है. can be selected only. ओके चलो मैं ये स्टेटमेंट थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, मुझे इसमें कोई इतना वो नहीं आ रहा है. चलो लेट इट सॉरी. सो सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि 5 गर्ल्स बैठी है और 5 गर्ल्स को हमने 5 फैक्टोरियल वेज में बिठा दिया. सो लेट मी मेक यू सी समथिंग लाइक दिस कि गर्ल्स ये प्लेस खाली, गर्ल्स प्लेस खाली, गर्ल्स प्लेस खाली और गर्ल्स. अब 5 गर्ल्स तो बैठ गई, 1 2 3 4 5, लेकिन इस गर्ल्स के इस साइड भी एक जगह खाली है और इस साइड भी एक जगह खाली है. करेक्ट. तो मुझे जो करना है वो काम क्या है कि मुझे इन क्रॉस मार्क वाली जो प्लेसेस है उनमें से किसी भी 3 जगह पे मुझे बॉयज को बिठाना है. लेकिन क्रॉस मार्क वाली जगह कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 जगह है जहां पे मैं 3 बॉयज को बिठा सकता हूं. सो व्हाट आई कैन से 6 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, इजंट इट. सो देयर आर 6 क्रॉस मार्क. करेक्ट. इतनी हमारे पास प्लेसेस है एंड हमें कितने बॉयज बिठाने हैं, 3. एंड द 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन 6p3 वेज. क्योंकि मैं इन 6 जगह में से किसी भी 3 जगह पे बॉयज को बिठा सकता हूं. इससे बॉयज आजू बाजू में नहीं आएंगे, गर्ल्स भले बाजू बाजू में आती है. सपोज मैंने ये 3 प्लेस पे बिठा दिया. करेक्ट. तो दैट मीन्स दिस 3 गर्ल्स विल बी टुगेदर, डजंट मैटर. सपोज मैंने पहली, दूसरी और 5वीं प्लेस पे बिठाया, कोई बात नहीं, बीच वाली गर्ल्स साथ में आ रही है, लेकिन बॉयज बाजू बाजू में आ रहे नहीं आ रहे. बॉयज बाजू बाजू में नहीं आने चाहिए. नो बॉयज सिट टुगेदर, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है. फिर 2 बॉयज के बीच के अंदर 2 गर्ल्स आ जाती है तो डजंट मैटर, दैट इज नॉट अवर प्रॉब्लम. हमें बस ध्यान रखना है बाजू बाजू में बॉयज होने चाहिए नहीं. करेक्ट. सो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल. क्यों मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल बोला, तो कि गर्ल्स को अरेंज करने के इतने तरीके हैं और बॉयज को अरेंज करने के इतने. तो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल द टोटल अरेंजमेंट्स आर, या टोटल नंबर ऑफ वेज, लेट्स से टोटल नंबर ऑफ वेज, सब सेम ही होता है भाई. टोटल अरेंजमेंट बोलो, टोटल नंबर ऑफ वेज बोलो, कितना आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3. 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल. तो क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1 6 5 4. कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, है ना. कितना आएगा 14,400. बस 0 है भाई, 14,400 पे ही खत्म करना है, इससे फर्दर नहीं बोलना था कुछ. करेक्ट. सो व्हेन यू सी समथिंग लाइक दिस ना, जब ऐसा हो कि भाई 2 बॉयज 2 गर्ल्स साथ में है, कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम आएंगे कि जैसे रो में बिठा है तो 2 गर्ल्स कैन नॉट सिट टुगेदर. करेक्ट. या सारी गर्ल्स को साथ में बिठा दिया तो बॉयज को बिठाने के अरेंजमेंट कैसे, वगैरह वगैरह. सो डिफरेंट वेज ऑफ अ प्रॉब्लम कैन बी देयर. आपको कंसेप्ट समझ के उन्हें अप्लाई करना सीखना है, ना कि उसे रटना. सिंपल. सो कंसेप्ट क्या था यहाँ पे कि भाई पहले 5 गर्ल्स को हम अरेंज कर लेंगे और 5 गर्ल को इस तरह से करेंगे कि उनके बीच में हम एक जगह छोड़ देते हैं जहां बॉयज को बिठा सकते हैं. अब उन सारी जगह कितनी मिली हमें, तो टोटल 6 जगह मिली. बॉयज बिठाने 3 ही है, तो इन 6 में से किसी भी 3 प्लेसेस पे हम बॉय को बिठा सकते हैं. इन हाउ मेनी वेज, 6p3 वेज. तो फिर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे जहां पे कभी भी 2 बॉयज बाजू बाजू में नहीं आएंगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3. यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, देयर इज नो चांस ऑफ कॉम्बिनेशन. ऐसा थोड़ी बोला है कि 2 गर्ल्स 3 बॉयज का कॉम्बिनेशन चाहिए या 3 बॉयज सिलेक्ट करो 2 गर्ल्स सिलेक्ट करो. सिलेक्शन इज मेंट फॉर द कॉम्बिनेशन. यहाँ पे सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है कहीं पे कुछ भी, तो व्हाई अननेसेसरीली कॉम्बिनेशंस क्रिएट करेंगे. एम आई क्लियर? So this is how we are supposed to solve this kind of problems, and that's where we can say the miscellaneous examples end.
and in the next class we are going to start miscellaneous exercise.